studying the Leach-Layer's principle. Now you have studied the law of chemical equilibrium, and you have studied the characteristics of equilibrium constant and application of the principle this equilibrium constant. Today we are proceeding towards the Leach-Layer's principle. Now you know the factors, three factors जो हैं, three factors like these factors change the state of equilibrium. तीन फैक्टर्स हैं जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को ऑल्टर कर सकते हैं. नाउ these factors जो हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज कंसंट्रेशन. दूसरा फैक्टर जो है दैट इज प्रेशर. और तीसरा फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर. दीज आर द फैक्टर्स विच चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. So now effect of these factors, it was stated by Leach-Layer. He gave a generalization. Leach-Layer ने ये जो तीन फैक्टर, he was a French scientist, French chemist was this. So 1884 में उसने एक प्रिंसिपल दिया which this Leach-Layer ने to describe the effect of change. जो आप चेंज कर रहे जा रहे हैं, it describes the effect of change. इसका प्रिंसिपल जो है Leach-Layer का, he gave this principle to describe the effect of change. जो आप चेंज कर रहे हैं तो it predicts what will be the effect. और we can say it describes the effect of change. जो आप चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पर. What will be the state after when you increase the or decrease any factor, what will be the effect of that change on the state of equilibrium. This was given by this generalization. We will call it a Leach-Layer's principle. So, or we can say it predicts the what will be the it predicts the effect of change. So this principle states, I will write the statement, if a system in equilibrium is subjected to change of concentration, pressure, और टेम्परेचर. ये तीन फैक्टर्स हैं. If a system in equilibrium is subjected to change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the change. Impose the change that tends to undo the change. That means जब आप चेंज कर रहे हैं, इफ सिस्टम अगर कोई आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम है, तो आप वहां पर किसी फैक्टर कंसंट्रेशन को, प्रेशर को और टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम जो है इट शिफ्ट हो जाता है इन दैट डायरेक्शन दैट टेंड्स, यानी उस जो आप चेंज कर रहे हैं उससे जो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उसकी तरफ. जो आप चेंज ला रहे हैं उस चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस चेंज को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
उसी तरफ जिस तरीके से जिस वे से ये कम हो जाएगा, उस जो आप चेंज कर रहे हैं, अब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन विच न्यूट्रलाइज द चेंज, और वी कैन से जब आप चेंज कर रहे हैं द इक्विलिब्रियम इट एडजस्ट्स इटसेल्फ in the direction so as to annul the change. I will write here again itself. When you bring the change, the system adjusts itself so as in such a way as to annul, or we can say neutralize the effect of change. फिर वही बात, यानी जब आप चेंज कर रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम जो है एडजस्ट करता है इस तरह से कि आपको जो चेंज करने जा रहे हैं, आप चेंज जो कर रहे हैं उस चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ चेंज, उस जो आप चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए उसी तरफ आपका जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है. I will repeat this again. If a system in equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the change imposed. Or we can say the system adjusts itself in such a way so as to annul or neutralize the effect of change. For example, I will write the first factor. Effect of concentration हम पढ़ेंगे. What will happen if we change the concentration, if we increase the concentration? For example, a reaction, I will write a hypothetical reaction, A plus B gives, this is a reaction equilibrium, gives C plus D. These are reactants and these are products. Now, for example, अब increase concentration change में आप क्या करेंगे? Concentration में concentration change, effect of change in concentration हम पढ़ रहे हैं. So अगर आप if you increase the concentration of increase आप increase कर रहे हैं concentration of A, यानी आपका reactant और B, दो में से एक, आप reactant A या reactant B को आप increase कर रहे हैं. So इसकी concentration increase कर रहे हैं, तो इसका मतलब है as per Dirichlet principle the effect will be, effect क्या होगा? The effect will be to decrease the concentration of A and B. Decrease the concentration of A and B. यानी आप क्या कर रहे हैं, आप इस रिएक्शन में जो A प्लस B है, आप A या B इसको आप इंक्रीज कर रहे हैं. अब A को इंक्रीज कर रहे हैं या B को इंक्रीज कर रहे हैं, जब आप सिस्टम तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, अब सिस्टम विल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, कहाँ जाएगा? उसके साइड जाएगा जहां पर इफेक्ट विल बी A और B का जो डिक्रीज होगा. दैट मीन्स आप इंक्रीज कर रहे हैं, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A and B, यानी इफेक्ट विल बी टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन A and B, कम होगा. सो A and B कैसे कम होगा? दैट मीन्स आप B इंक्रीज कर रहे हैं, अब ये उस तरीके ये कम होगा, यानी इफेक्ट विल बी दैट A and B शुड बी डिक्रीज, कंसंट्रेशन शुड बी डिक्रीज. ये A and B तभी डिक्रीज होगा जब C and D बनेगा. दैट मीन्स A and B reactants है, आप reactant increase कर रहे हैं, that means effect will be to decrease the concentration of reactants. That will happen only when the products are formed. That means C and D will be formed more. तो आपने चेंज A and B को की, so इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, C and D will be ज्यादा बनेगा. That means forward reaction is favored. Forward reaction is favored. So आपने concentration A और B की increase की थी, तो आपका equilibrium shift हो गया in the forward direction and C and D are formed. So now if we write this equation again, now these are the products, now this is C plus D react give A plus B, this is the reversible reaction. So अगर आप C और D को increase कर रहे हैं, C और D को इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम जो है इस तरफ एडजस्ट हो जाएगा. कहां पर?
सो दैट इनकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। वो तब हो जाएगी जब सी ए डी रिएक्ट करेगा, ए एंड बी बनेगा। दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो जाएगी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी रिएक्टेंट्स विल बी फॉर्मड। सो अगर हम ऐसे लिखेंगे, इस रिएक्शन का हम ऐसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका है concentration of concentration of C, active mass of C, active mass of D divided by active mass of A और active mass of B। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर अदर देन इक्विलिब्रियम को लेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन कोशेंट हम लेंगे, वो हम QC से लिख रहे हैं, तो दैट विल बी आल्सो C, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D और कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। सो जब आप ए एंड बी इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फैक्टर आप ए एंड बी इंक्रीज कर रहे हैं, ए एंड बी इंक्रीज कर रहे हैं, सो वैल्यू ऑफ के सी जो है, वैल्यू ऑफ के सी विल डिक्रीज। सो नाउ क्यू सी इंक्रीज होना चाहिए सो दैट क्यू सी इज लेस देन के सी। सो वैल्यू ऑफ क्यू सी डिक्रीजेस, दैट मीन्स क्यू सी इज लेस देन के सी। सो अब के सी को इंक्रीज होना है, दैट मीन्स जब क्यू सी इंक्रीज होगा, सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जांपल, अगर आप एक रिएक्शन लिखेंगे, हम this Fe tripositive ferric chloride लेंगे, ferric ions plus sulfocyanide ions, it gives FeSCN डाइनेगेटिव, डाइपॉजिटिव। सो ये रिएक्शन है। देखिए, दिस इज रिएक्शन डन इन द लैब। अगर हम फेरिक आयन्स या फेरिक क्लोराइड लेंगे, दिस इज येलो, पेल येलो कलर, और सल्फोसाइनाइड आयन जो आते हैं, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड आयन, दिस इज कलरलेस। अगर तो प्रोडक्ट्स इसमें बन जाता है, दिस सल्फोसाइनाइड, दिस इज रेडिश कलर, डीप रेडिश आता है। तो अगर आप, जब हम रिएक्शन करते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम, द रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ इस रिएक्शन मिक्सचर में जो टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे, फेरिक आयन इंक्रीज करेंगे, यानी हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे विच इज पेल येलो, आपका जो कलर आता है दैट मीन्स रेडिश ब्राउन जो है, दैट डीपन्स, दैट मीन्स आपका दिस फेरस सल्फोसाइनाइड आयन्स ज्यादा बनते हैं, तो कलर आपका रेडिश ब्राउन, रेडिश जो होता है डीप होता जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। सो अगर आप फेरोसल्फोसाइनाइड बनने जाएंगे, इसी को हम पोटेशियम फेरोसल्फोसाइनाइड डालेंगे, यानी अब प्रोडक्ट्स सम आयन्स ऑफ सम थोड़ा सा पोटेशियम फेरोसल्फोसाइनाइड डालेंगे। सो अगेन व्हाट हैपेंस, हमने तो रेड कलर यहीं से डाला था, यानी जो रेडिश कलर है, अब और रेड कलर मैं ऐसे बता दूंगा सिंपली से, ये रेड कलर था, मैंने और ज्यादा रेड कलर डाल दिया, दैट मींस आई हैव इंक्रीज्ड द पोटेशियम दिस फेरोसल्फोसाइनाइड आयन्स। सो व्हाट विल हैपन, जो कलर रेड नहीं रहेगा, द कलर विल चेंज टू, थोड़ा कलर डिम होता जाएगा। क्यों? आपके सल्फोसाइनाइड बनते हैं और फेरिक क्लोराइड बनता है, दैट मींस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जनरलाइजेशन आ गई हमारे पास ये। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स shifts the reaction in forward direction. अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज, इट विल शिफ्ट द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आपका
प्रोडक्ट इंक्रीज करने से आपकी रिएक्शन जो है इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस वाज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम. फर्स्ट फैक्टर, effect of temperature. Effect of temperature is seen in exothermic and endothermic reactions. Yani those reactions which proceed by evolution of heat and by absorption of heat. Exothermic and endothermic reactions में this effect is seen. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूँ एक रिएक्शन है N2 plus thrice H2. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय Haber's प्रोसेस गिव्स twice NH3. So I will write here del H is equal to, and enthalpy change is minus 92 kilojoules of energy. That means this जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स twice NH3. आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. 92 kilojoules of energy is evolved. We can write it in this way also. N2 plus thrice H2 gives twice NH3. यहाँ से मैं डेल एच निकालूंगा, सीधा लिखूंगा प्लस 92 kilojoules of energy. That means 92 kilojoules एनर्जी आपका पर मोल आपका जो है लिबरेट होता है, वो एक्सोथर्मिक है. सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अब देखिए हम इस रिएक्शन में इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या हो जाएगा. हाँ, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन. आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. दैट मीन्स NH3 जब डिकम्पोज होगा N2 plus thrice H2, it will absorb the heat. That means backward reaction is endothermic. So हमें यहाँ पहले पता चल गया इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है. और बैकवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, दैट इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक. अब देखिए अगर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर हियर. मैं यहाँ पर इस रिएक्शन सिस्टम जो है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा. सो व्हाट विल हैपन, लीचेट प्रिंसिपल बताता है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन व्हिच विल अंडो द इफेक्ट चेंज. यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, जो आपका जो इफेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो रिएक्शन सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम उस साइड हो जाएगा जहां पर आपका जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है. दैट मीन्स आप हीट दे रहे हैं तो हीट कम होने के लिए, यानी हीट विल एब्जॉर्ब द हीट. सो एब्जॉर्ब के लिए दैट मीन्स NH3 जो है ये डिकम्पोज होता है only when it absorbs the heat. So when you increase the temperature in this system, the equilibrium ammonia will get decomposed and will form N2 plus thrice H2. That means when you increase the reaction of the exothermic reaction, when you increase the temperature of exothermic reaction, this is the exothermic reaction in case of ammonia, this is the exothermic reaction, and you when you increase this temperature, the decomposition of ammonia takes place. That means backward reaction is favored because backward reaction takes place by the absorption of heat. अगर आप डिक्रीज टेम्परेचर कर रहे हैं दैट मीन्स इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है. सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास कंक्लूजन आ गया. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और फेरो एक्सोथर्मिक जो है दे आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, endothermic reactions they are favored by high temperature. I will tell you again. यहाँ manufacture of ammonia जो है actually
nitrogen and ammonia combined and nitrogen and hydrogen combined give ammonia. This is the exothermic reaction. 92 kilojoules per mole are evolved. So this is the forward action. That means जब हम backward जा रहे हैं, ammonia decompose हो रहा है, तो it will absorb the same amount of energy. 92 kilos of energy will be absorbed. So इस system में अगर हम increase कर रहे हैं temperature, that means the equilibrium will shift as per the Lecher-Diaz principle. Equilibrium shift in that direction which tends to undo the change. That means equilibrium shift, that will effect will be to decrease this effect. That means it will take in the direction while the heat is absorbed. So heat कहाँ absorb हो रही है? That's in the backward direction. So ammonia will get decomposed. अगर आप temperature decrease कर रहे हैं तो आपका जो equilibrium will shift in the forward direction, that ammonia will be formed. So in the manufacture of ammonia, this is favored at low temperature, and this is because this is exothermic. So generalization came that exothermic reactions are favored by low temperature and endothermic are favored by high temperature. In case of ammonia, we take the optimum temperature because industrial process, at low temperature this reaction is slow. So for that, to increase the rate of reaction, we take the optimum temperature here. So this was the effect of temperature on the system in equilibrium. Tomorrow we will